নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাই টুইঙ্কল স্ট্রির আরও একটি ইনফরমেশন ভরা ভিডিওতে। আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো বাল বিকাশ মন্ত্রী, শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি উনি কী বললেন একটা ইন্টারভিউতে। অঙ্গনওয়াড়ি সম্পর্কিত অনেক তথ্যই উনি তুলে ধরেছেন। অঙ্গনওয়াড়ির আগামী প্রকল্প কী হতে চলেছে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সম্পর্কিত কিছু কথা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সম্পর্কিত কিছু তথ্য, এছাড়াও পোষণ ট্র্যাকার যে আমাদের চলছে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে পোষণ ট্র্যাকারের ব্যবহার, সেই ব্যাপারে উনি অনেক কিছুই তথ্য একটা ইন্টারভিউর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তো চলুন আমরা সব বিস্তারের সমস্ত ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে নিই, এবং তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে উনি কী বিষয়ে কী কী তথ্য তুলে ধরেছেন এবং আগামী দিনে কী হতে চলেছে সবটা জানবো কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যম দিয়ে। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো বন্ধুরা, দিদিরা। যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই কিন্তু এই আইসিটি সংক্রান্ত চ্যানেলটিকে অর্থাৎ টুইঙ্কল স্ট্রি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে নোটিফিকেশান বেলটা অন রাখতে ভুলবে না। এবং কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা দেখে নিই আজকের ইন্টারভিউতে স্মৃতি ইরানিজি অঙ্গনওয়াড়ি সম্পর্কিত নতুন কী তথ্য তুলে ধরছেন। প্রত্যেকটা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে এটা জানা দরকার, এটা দেখা দরকার। এটা সমস্ত রাজ্যের, শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নয়, প্রতিটি রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর জন্যই এটা কিন্তু খুবই হেল্পফুল হতে চলেছে। তাই দেখতে থাকুন, এবং যদি কোথাও সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। আর আপনারা কী ধরনের ভিডিও আশা করছেন, দেখতে চাইছেন, সেটাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আগামী দিনে আমি সেই ধরনের ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করব। তো চলুন এবার আমরা দেখে নিই ইন্টারভিউটি। नहीं, ये चर्चा आंगनवाड़ी से रिलेटेड है मैम, क्योंकि एक सेक्शन है जिनको शायद काउंट नहीं किया जाता था, वो अब काउंट हो रहे हैं और वो शायद आपके जीत में ट्रांसलेट हो रहा है। मुझे लगता है सक्षम आंगनवाड़ी की जो कल्पना है वो साधारण आंगनवाड़ी नहीं है। भारत नेट से जुड़ा हुआ वो आंगनवाड़ी का स्पेस है। ऑडियो विजुअल लर्निंग वहाँ पर डिवाइसेस या फिर इंगेजमेंट्स और प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। और आज के दशक में अगर हम कहें कि आंगनवाड़ी को सिंपली एक छोटा सा कमरा है, वो आंगनवाड़ी दीदी है, वैसी कल्पना प्रधानमंत्री की नहीं थी। उन्होंने कहा हर आंगनवाड़ी बहन के पास एक स्मार्टफोन हो और स्मार्टफोन में एनालिटिक्स के साथ उनके पास एक ऐप हो, डिवाइस इनेबल्ड हो कि वो हर एक बेनिफिशियरी तक, लाभार्थी तक रिकॉर्ड सहित पहुंच सके। जो बाहर में आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, जो आपकी बहनें हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। और जो बिहार में हमने देखा था एक मुस्कुराता हुआ चेहरा महिलाओं का, और मैम ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और शायद जो एजेंट्स ऑफ चेंज बोलते हैं वो महिलाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि पहले मंगलवार को वज़न दिवस होता है, दूसरे मंगलवार को गोद भराई, थर्ड पीटीएम दिवस, और उसके बाद सुपोषण दिवस। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ये पोषण ट्रैकर है। और पोषण ट्रैकर कोविड के वक्त बनाया था, 3 महीने में। ट्रैकर बनाने वाले मैं और ये 2 अफसर यहीं सामने बैठे हुए हैं। तो कई लोगों ने कहा बहुत एम्बिशियस है, फिर कुछ लोगों ने कहा अरे इतना एम्बिशियस है कि बड़ा महंगा पड़ेगा। हमें डोनेशन मिली, हमें सहायता मिली। हमने कहा कि हम इसको सरकारी सिस्टम में ही बनाएंगे, और ट्रैकर को बनाकर डिप्लॉय हमने ये पूरा का पूरा काम 3 महीने में किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा भले ही कोविड की आई है, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नेंस में हम लोग कमज़ोर पड़ जाएं। आपके विभागों में अगर आपको कोई ऐसा कदम उठाना है जो रिफॉर्म लेकर आ सकता है, यही समय है। जैसे पीएम कहते हैं सही समय, इस समय पे करो। So India has nearly 14 lakh Anganwadis and over 9 crore beneficiaries, of which 8 crore are children. 10 crore beneficiaries, of which 7.5 crores of them are children under the age of 6. How have you reimagined Anganwadis? And my question is also, how was this institution, because this is an institution which your ministry has created, what was it before 2014 and what has changed after 2014? See, the idea of Anganwadi is something that germinated in our country in the 1970s. आप बोलते हैं बच्चे को हेल्दी बनाना है, लेकिन मानक क्या है, बेंचमार्क क्या है, कैसे पता चलेगा? तो मंत्रालय हमारा और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के बीच में समन्वय ही नहीं था मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कि किसके स्टैंडर्ड के आधार पर बच्चे क्या हेल्थ डिसाइड करेंगे। WHO के स्टैंडर्ड को लेकर हमने दोनों मंत्रालय के समन्वय से स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रोसेस और प्रोसीजर आंगनवाड़ी की बहनों को, आशा वर्कर्स को दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि महिला की मृत्यु दर कम हो बच्चे का जन्म देते वक्त, तो महिला क्यों नहीं जाती है डॉक्टर के पास,
कि उस एक दिन में अगर उसको वैक्सीन लगाना है या डॉक्टर का चेकअप करना है, मजदूरी का पैसा कम पड़ जाता है। तो नरेंद्र भाई ने कहा ऐसा करते हैं कि ऐसी गर्भवती बहनों के लिए आप उनके बैंक में कैश ट्रांसफ़र करवाओ। तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना शुरू हुई। 5,000 रुपये सीधा बैंक के खाते में 2 किस्तों में जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पहले बच्चे के लिए जा रहा है, अगर दूसरी बेटी हो तो 6,000 रुपये दो, ताकि महिला अगर गर्भवती है तो वो जाए, वैक्सीनेशंस पाए, डॉक्टर का चेकअप पाए। और एक बार एक मेंटल फ्रेमवर्क हो जाता है कि इस अस्पताल में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स और वहाँ पर जो मेडिकल पर्सनल फील्ड वर्कर्स हैं वो महिला को प्रोत्साहित करते हैं कि आप घर पे बच्चे को जन्म ना देना, अगर कुछ हो गया तो फिर कम से कम डॉक्टर की सुविधा आपको अस्पताल में मिलेगी। तो वो डिलीवरी आपकी बढ़ने लगी, महिला की मौत, बच्चे को जन्म देते हुए ये परसेंटेज आपका घटने लगा। अब बच्चा अगर अस्पताल की परिधि में जन्म लेता है, बच्चे को जन्म के वक्त अगर कोई तकलीफ़ है तो आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उस बच्चे की देखभाल करने के लिए। व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज मुझे पता करना है किसी ज़िले में, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में बच्चा बीमार है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को एक नेशनल फ्लैगशिप स्कीम बनाया। हमारे देश के इतिहास में कभी भी, आप कह रही हैं मेरे मंत्रालय का ये काम है, हम 18 मंत्रालयों का समन्वय करते हैं। 18 मिनिस्ट्रीज़ कोलैबोरेट अंडर द पोषण अभियान, विच मीन्स 18 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब कोई सोचेगा कि आंगनबाड़ी में एग्रीकल्चर का क्या काम है। हमने पोषण वाटिका बनवाई, देश भर में 2 लाख से ज़्यादा पोषण वाटिका बनाई, जिसमें हमने कहा कृषि विज्ञान केंद्र कहीं चल रहा है उसके कृषि विशेषज्ञ को बुलाओ, वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से स्थानीय कौन सी वेजिटेबल्स उग सकती हैं जो आंगनवाड़ी की बहनें बच्चों को वहाँ खिला सकती हैं। तो देयर हैज़ बीन, कहते हैं ना, गॉड इज़ इन डिटेल्स, and the Prime Minister finds God in that detail almost in every project that he undertake. आपने कहा कि 17-18 मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट करती हैं जी। तो ये जो डेटा है, डेटा ट्रैकर जो है आपका, all of them have the data? All of We them have keep our track of- partners in the Ministry of Health, Education, और जब मान लीजिए मुझे आंगनवाड़ी में पोषण वाटिका बनाना है तो मंत्रालय कृषि को पता होता है कि मैम मीटिंग आज बुलाएंगी, या फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम आपको पिन पॉइंट कर देंगे। हमने, आप पीएम गति शक्ति के बारे में बहुत आपने चर्चा Right. सुनी होगी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं रेल बनेगा, ब्रिज बनेगी, रोड्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, तो उसको जियो टैगिंग करो। हमने आंगनवाड़ी को भी गति शक्ति में डाल दिया है। तो मतलब कि इस आंगनवाड़ी में अगर कोई नलका नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और अगर आंगनवाड़ी बंद है तो हम वो भी सचेत कर देते हैं। एक प्रदेश ऐसा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस प्रदेश से ही आप शायद आती हैं, वहाँ पर हमें पता था कि 9,000 आंगनवाड़ियाँ बंद हैं। तो हमने प्रदेश से कहा आपके 9,000 आंगनवाड़ी बंद हैं, खोलने का इरादा है या बंद कीजिएगा। तो प्रदेश ने त्वरित रूप से, तो टेक्नोलॉजी का ये भी फ़ायदा होता है कि हम प्रदेश की सरकारों को ज़िला के हम अपने जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी आंगनवाड़ी फंक्शनल नहीं है। हर आंगनवाड़ी की अगर आप होम विजिट्स ही देखें, हमको पता चल जाता है कि किस बेनिफिशियरी के पास, भारत सरकार में हमें पता चल जाता है कि अब तक कोई गया नहीं है। हर महीने 2.5 करोड़ हमारे देश में आंगनवाड़ी का हमारा सिस्टम होम विजिट करता है। मतलब साल का कम से कम 24 से 25 करोड़ होम विजिट्स हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। ट्रेनिंग, ट्रैकिंग, डिलीवरी जी, एक प्रोसेस है। आपने सब महिलाओं को, आंगनवाड़ी महिलाओं को एक स्मार्टफोन दिया, हम लेकिन सिर्फ ट्रेन उस कैसे तक किया आपने? सीमित नहीं रहते। हर साल 300 करोड़ का बजट है, उसको स्पेंड हम लोग करते हैं ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ हमने कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया है ताकि दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में आंगनवाड़ी दीदियों को स्पेशल अगर ट्रेनिंग चाहिए तो उसको हम कैसे कर पाएँ। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप कहते हैं कि ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिट्स टू बेनिफिशियरी, तो हम सिर्फ पोषण ट्रैकर पर निर्भर नहीं करते। आंगनवाड़ी दीदी ने, मान लीजिए आपने 10 बेनिफिशरीज़ का नाम भरा, उसमें से हम कभी भी किसी भी बेनिफिशरी को हमारी जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है उससे फ़ोन करते हैं कि वाकई में आपको ये सेवा मिली या नहीं मिली। सो देयर इज़ नॉट ओनली वन ट्रैकिंग इंटरफेस डिजिटली, there is not only one reporting digital interface, we also have a call and a helpline where we randomly call and check.
So there is also this effort to ensure that there is corroborative evidence about genuinely what is coming up on the tracker. इंटरव्यू के बाद आंगनवाड़ी बहनों के साथ भी बातचीत की गई। इसके बाद आंगनवाड़ी बहनों ने माननीय मंत्री जी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Women are very happy. मैम ने क्या क्या बदला है ये मत सोचिए कि इसलिए बोलना पड़ेगा। मैडम बहुत कुछ बदला है मैडम ने, क्योंकि हमें हमारी एक अलग पहचान हो गई है। पहले हमारे काम को कोई नहीं जानता था और अब सब जानते हैं। स्मृति ईरानी जी ने आंगनवाड़ी बहनों को लेकर क्या कहा, यह भी सुनिए। मुझे इनके बारे में आभार इसलिए व्यक्त करना है, अपने लिए नहीं मांगती, सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम देश में 8 करोड़ बच्चे आंगनवाड़ी सिस्टम में संभालते हैं और 8 करोड़ बच्चों की जिम्मेदारी, वो भी छोटी उम्र में, 6 साल से कम उम्र में। कितनी तो गर्भवती बहनें ऐसी हैं जो शायद अपने परिवार में सास से, माँ से कुछ नहीं पूछ सकती, दीदी से पूछ लेती है।